السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ امیر پیٹ میتری ونم میں سینئر NTR اسٹیچو انسٹالیشن کی تیاریاں تیز۔ حیدرآباد کے امیر پیٹ میتری ونم میں 28 مئی کو NT راما راؤ کی 103ویں جینتی کے موقع پر لگائے جانے والے اسٹیچو کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تو ملا ناگیشور راؤ اور مگنٹی گوپی ناتھ نے مل کر اسٹیچو انسٹالیشن ورکس کا انسپیکشن کیا اور ارینجمنٹس کا ریویو لیا۔ لیڈرز نے کہا کہ یہ اسٹیچو پچھلے الیکشن پرومس کے مطابق انسٹال کیا جا رہا۔ اس پروجیکٹ کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے کوآپریشن سے کمپلیٹ کیا جا رہا۔ سورسز کے مطابق 28 مئی کو سینئر NTR کی جینتی پر گرینڈ انوگریشن پروگرام آرگنائز کیا جائے گا، جہاں سیاسی اور فلم پرسنالٹیز کی شرکت بھی متوقع ہے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ تیلگو اسٹیٹس میں سورج آگ ابل رہا۔ 45 ڈگری کے ریکارڈ درجہ حرارت کے ساتھ شدید لو چلنے کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار۔ گرمی کی شدت اور لو لگنے کے سبب آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں 77 افراد کی موت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ان میں صرف تلنگانہ میں 52 جبکہ آندھرا پردیش میں 25 پیپلز مر چکے ہیں۔ تاہم زمینی سطح سے موصول ہونے والی غیر سرکاری رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دونوں اسٹیٹس میں تقریباً 200 سے 300 افراد لو لگنے سے مر چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ آئندہ چند دنوں تک گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے اور درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر دونوں اسٹیٹس کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں نے عوام کو انتہائی محتاط رہنے کا سجیشن دیا ہے، خاص طور پر دوپہر 11 بجے سے شام 4 بجے تک شدید گرمی رہنے کے باعث بزرگوں، حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو انتہائی ضرورت کے مطابق ہی گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت دی۔ انسٹاگرام سٹنٹ نے پہنچایا جیل تک زیپٹو ڈیلیوری بوائے پر پولیس ایکشن۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن نے 19 سالہ زیپٹو ڈیلیوری ایگزیکٹو شاداب کے خلاف ڈینجرس بائک سٹنٹس کرنے پر کیس درج کر لیا۔ KBR روڈ پر ریلز بنا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق شاداب KBR نیشنل پارک مین روڈ اور شامیر پیٹ ایریا میں ریکلس بائک سٹنٹس کرتا نظر آیا۔ ان سٹنٹ ویڈیوز کو بعد میں انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا۔ بائک بھی سیز۔ اتھارٹیز نے سٹنٹ کے لیے استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کو بھی سیز کر دیا ہے۔ BNS اور MV ایکٹ کے تحت کیس۔ پولیس نے پبلک سیفٹی کو ڈینجر میں ڈالنے اور ٹریفک رولز کو توڑنے پر BNS اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت کیس رجسٹر کیا ہے۔ یوتھ کو سخت وارننگ۔ پولیس نے ینگسٹرز کو وارننگ دی ہے کہ سوشل میڈیا فیم کے لیے پبلک روڈز پر سٹنٹ بازی کرنا بہت خطرناک ہے۔ ڈینجرس ریلز، اسٹرکٹ ایکشن۔ آفیشیلز کا کہنا ہے کہ فیوچر میں بھی ایسے سٹنٹ ویڈیوز پوسٹ کرنے والوں کے خلاف ٹف ایکشن جاری رہے گا۔ کومپلی میں چین سنیچنگ کی کوشش ناکام، لوکلز نے ملزم کو پکڑ لیا۔ حیدرآباد کی کومپلی کی جیا بھیری کالونی میں ایک آئل شاپ کے اندر چین سنیچنگ کی کوشش سے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ رپورٹس کے مطابق ایک شخص دکان میں زبردستی گھس گیا اور خاتون اونر پر حملہ کرتے ہوئے ان کی گولڈ چین چھیننے کی کوشش کی۔ خاتون کی مدد کے لیے چیخنے کی آواز سنتے ہی نیئر بائی ریزیڈنٹس فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے ملزم کو قابو میں کر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ پورا انسیڈنٹ علاقے میں لگے CCTV کیمراز میں ریکارڈ ہو گیا، جس کی فوٹیج اب پولیس جانچ کے لیے استعمال کی جا رہی۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر لیا اور واقعے کی مکمل انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے مزید ڈیٹیلز جمع کی جا رہی۔ ایکٹر منچو منوج کا انسانیت بھرا قدم، یتیم کو دی نئی زندگی۔ منچو منوج نے رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کے نادرگل میں موجود مترو دیوو بھاوا آننت آشرم کا دورہ کیا اور اپنی انسانیت سے سب کے دل جیت لیے۔ سیلیبریٹی تو
पुनर्जन्म चैलेंज के हिस्से के तौर पर मंजू मनोज ने एक बेसहारा शख्स को नई जिंदगी देने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलकपेट रोड पर जहनी तवाजुन खो बैठने वाला एक शख्स घूम रहे थे जिसे आश्रम के मेंबर्स ने पनाह दी। इस मौके पर मनोज ने खुद उस शख्स के बाल और दाढ़ी ट्रिम की, नए कपड़े दिए और उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह तैयार किया। मंजू मनोज ने आश्रम के ऑर्गेनाइजर गिरी को यकीन दिलाया कि वो हमेशा आश्रम के साथ खड़े रहेंगे और हर मुमकिन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एक्टर के इस इंसानियत भरे कदम को सोशल मीडिया पर बहुत सराहा जा रहा और फैंस उनकी सिंपलिसिटी और हेल्पिंग नेचर की तारीफ कर रहे। बीआरएस ने हुकूमत पर साधा निशाना। विष्णुवर्धन रेड्डी ने खम्मम में प्रोक्योरमेंट की डिमांड करने वाले फार्मर्स पर केस दर्ज होने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि किसान सिर्फ अपनी फसल की प्रोक्योरमेंट का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उन पर केस दर्ज करना नाइंसाफी है। विष्णुवर्धन रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना भर के फार्मर्स गवर्नमेंट के इलेक्शन प्रॉमिसेस पूरे न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। People are dying, and the farmers, all they were asking for the government is to procure the produce that they've cultivated. Unfortunately, despite दिल्ली में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी और सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में ओएसएम के इस्तेमाल पर एजुकेशन मिनिस्ट्री को निशाने पर लिया। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम करने का तरीका हाईली इम्प्रैक्टिकल नजर आ रहा। उन्होंने नीट कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए कहा कि पूरा मुल्क पेपर लीक की बात कर रहा, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए अब भी कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि अगर लीक नहीं हुआ तो फिर री एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कराया जा रहा। उनके मुताबिक ये सूरत-ए-हाल इंतहाई अजीब और तशवीशनाक है। का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यवहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यवहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है तो पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग और कर्नाटका कांग्रेस की सियासी सूरत-ए-हाल पर ऑपोजिशन को निशाने पर लिया है। मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इंडिया में होना मुल्क के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग में करंट ग्लोबल सिचुएशन पर भी बहस होगी और पूरी दुनिया की नजरें आज इंडिया पर लगी हुई हैं, क्योंकि इंडिया को एक कंट्री ऑफ पीस के तौर पर देखा जाता है। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक इंडिया हमेशा अमन का पैगाम देता आया है और इसी वजह से क्वाड मीटिंग से भी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। कर्नाटका कांग्रेस लीडरशिप के ऑनगोइंग मीटिंग्स पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ डिसअरे का शिकार है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के लिए काम करने के बजाय अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ है। और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए जनता ने तो मन बना लिया है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भी उनको हटाना चाहता है, डीके शिव कुमार को बनाना चाहता है। वो हो नहीं रहा है, आपस में इनकी लड़ाई है और कर्नाटक में जनता पूरी तरह परेशान है। कर्नाटका के मिनिस्टर एमबी पाटिल ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो पार्टी लीडर्स के साथ मुख्तलिफ सियासी मामलात पर डिस्कशन के लिए राजधानी में मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद कर्नाटका मिनिस्टर एमबी पाटिल ने कहा कि पार्टी के अंदर कई अहम सियासी इश्यू पर मशवरे जारी हैं और इसी सिलसिले में सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की जा रही। उन्होंने कैबिनेट रीशफल और लीडरशिप चेंज के हवाले से भी सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि ये मामला पूरी तरह पार्टी हाईकमांड के इख्तियार में है। ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ, ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜಿಯವರು, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ।
दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि पहली मर्तबा वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप इंडिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसका मकसद दुनिया भर में योगा और योगासना की अहमियत को उजागर करना है। मीडिया से बात करते हुए मनसुख मांडविया ने बताया कि वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अहमदाबाद में मुनक्किद हो रही और इस इवेंट को इंडिया के लिए एक अहम कल्चरल और स्पोर्टिंग इनिशिएटिव के तौर पर देखा जा रहा। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार है जब इंडिया वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा। इवेंट का बुनियादी मकसद इंडिया के योगा और योगासना के इल्म को दुनिया के सामने पेश करना और उसकी अहमियत को हाईलाइट करना है। दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी किताब अपनापन माई एक्सपीरियंसेस विद नरेंद्र मोदी रिलीज की है। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी और डिजिटल सोच को याद किया। बुक लॉन्च इवेंट के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के पुराने सियासी दौर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ी दिलचस्प यादें शेयर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्कर्स ट्रेडिशनली कन्वेंशनल तरीके से काम करते थे और उस वक्त टेक्नोलॉजी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। किसके पास ईमेल आईडी है, किस के पास। अब यहाँ तो ईमेल आईडी से कोई वास्ता नहीं था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक क्षण सन्नाटा। फिर बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, वो कहने लगे नरेंद्र भाई ये क्या लखनऊ में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने फेक एनकाउंटर्स के हवाले से सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये जमहूरी निज़ाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि फेक एनकाउंटर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इंसाफ और सोशल जस्टिस के उसूलों को पूरी तरह रद्द कर देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे इंसिडेंट्स जमहूरी सिस्टम और कानूनी निज़ाम के लिए खतरा हैं। उनके मुताबिक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना चाहिए, ना कि फोर्स और डर के जरिए। एसपी चीफ ने कहा कि हर शख्स को इंसाफ हासिल करने का हक है और किसी भी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है जो कहती है कि शक्ति ही अधिकार है। मतलब आसाम असेंबली स्पीकर रंजीत कुमार दास ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पर बहस कल की जाएगी, जबकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में खवातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन के निफाज पर डिस्कशन हो रहा। आसाम से आने वाली अहम सियासी खबर के मुताबिक स्पीकर रंजीत कुमार दास ने असेंबली प्रोसीडिंग के हवाले से बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन शेड्यूल की गई है। स्पीकर के मुताबिक एजेंडा खवातीन के सियासी हुकूक और रिप्रेजेंटेशन पर मरकूज। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन पर बहस की जा रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।